Hello everyone, I am Sudhakar Kumar. I am a final year MTech student at IIT Bombay. In this video, we will be sharing the experience of Mr. Saurav Suri, who has been placed in Sony Japan as an AR VR system engineer. You can view his portfolio on the URL given in the description of this video. Before we listen to Saurav, I would like to introduce him formally to our viewers. He is a final year MTech student in the Department of Electrical Engineering at IIT Bombay. He has also been working as a research assistant in Vadhavani Electronics Lab at IIT Bombay since July 2018. Before that, he has worked as an associate patent engineer at United Lex. He has also completed his BTech in Electrical and Electronics Engineering from Delhi Technological University, popularly known as DTU. Without further delay, I would request him to share his experience of getting placed in Sony Japan. So we will first talk about the company, like the profile which Sony has offered and the different profiles for which you applied actually. Fine. So the company named Sony usually hire for machine learning, deep learning, computer vision, computer graphics. Sometimes, like for me, this time it was hardware system design engineer, AR, VR, MR, mixed reality, mechanical design of AR headsets. Actually, last year they hired for PlayStation. In PlayStation, it was software profile, hardware profile, mechanical profile, and this year they hired for AR systems. Yeah. तो इसका मतलब ये इस टाइम कितने जैफ थे लगभग फिर सोनी के? सोनी के इस बार भी 12-13 जैफ्स थे और एक जेनरिक जैफ था जो डीएल डीप लर्निंग पे था, बट उसमें से उन्होंने कोई शॉर्टलिस्ट नहीं किया. देन देयर वर few mechanical jafs, one mechanical jaff which for which they shortlisted in good number, but they didn't hire eventually. Or then there was one this jaff for AR system engineer. Okay. And rest there were other jaffs. I don't remember. So you applied for which jaff mainly or jaffs? I applied for two jaffs. One being the system engineer, AR VR system engineer. The other being computer vision based jaff. Okay. So you got shortlisted for interview for both of these jaffs or? Only for AR VR system engineer. For the other jaff there was, I don't remember there was any shortlist. Okay, fine. Okay. So अब हम लोग ठीक है, अब हम लोगों ने टेस्ट की बात कर सकते हैं, लाइक टेस्ट की बात उससे पहले हम एसओपी की बात कर लें कि लाइक जैफ साइन के टाइम पे क्या चीज चाहिए, राइट? पहले टेस्ट की बात करते हैं, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही चलते हैं. ठीक है, तो ओके, तो इसमें टेस्ट हुआ था, रिटन टेस्ट था सोनी के लिए, तो टेस्ट के लिए भी शॉर्टलिस्ट आई थी या टेस्ट सबको देने दिया था? यूजुअली टेस्ट सबका था. तो टेस्ट के लिए ऐसा था कि कोडिंग क्वेश्चन था एक और एक एंड फ्यू एमसीक्यू क्वेश्चंस थे. हैकरैंक पे टेस्ट हुआ था और प्रेफरेंस पूछी थी कि आपको सी में करना है, सी प्लस प्लस में करना है और पाइथन में करना है. और एडवाइस ये रहेगी कि जो उनके एमसीक्यू क्वेश्चन से मोस्टली फ्रॉम गीक फॉर गीक कांसेप्ट्स थे, जो एमसीक्यू गीक फॉर गीक में दे रहे थे. क्वेश्चंस थे सीएस के बैकग्राउंड, लाइक डीबीएमएस ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब क्वेश्चंस थे क्या? नहीं, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन थे. अच्छा, एमसीक्यू लैंग्वेज बेस्ड कांसेप्ट था, आउटपुट थे. ओके, ओएस के थे. ओके, तो ये गीक फॉर गीक से हो जाएगा. गीक फॉर गीक से ही यूजुअली थे. हैकरैंक प्लेटफॉर्म था और बट लास्ट ईयर उनका जो टेस्ट था वो बहुत डिफरेंट था. लास्ट ईयर उनका सिर्फ 20 मिनट्स का एप्टीट्यूड टेस्ट था. हाँ, इनका याद आ रहा है. हाँ. दिस टाइम इनका 45 मिनट्स का टेस्ट था जिसमें एक प्रॉपर कोडिंग क्वेश्चन था और बाकी एमसीक्यूज थे. 20 एमसीक्यूज थे. लास्ट टाइम याद है मुझे, हमने कराया था तो मुझे याद आ रहा है. सोनी का टेस्ट बहुत छोटा था, करेक्ट. तो इस बार के टेस्ट में टेस्ट वाज सेम अक्रॉस ऑल द जैफ्स की हर जैफ के अलग अलग टेस्ट थे? एक यूनिक टेस्ट था. हर जैफ के लिए एक ही टेस्ट था.
तो सबको मतलब जिसने भी जैप साइन करा हो उसको वो टेस्ट देना है कंपलसरली। करेक्ट। तो टेस्ट के सिलेबस के लिए वही सीएस और प्रोग्रामिंग आउटपुट क्वेश्चन थे ऊप्स वगैरह पे, जो कि इसको से सॉल्व किए जा सकते हैं, और एक क्वेश्चन प्रोग्रामिंग लिखने का था है। वो इजी था क्वेश्चन, मतलब अगर हैकररैंक में देखा जाए तो इजी लेवल क्वेश्चन था। किस चीज के ऊपर था तुम्हारा वाला क्वेश्चन, मतलब टॉपिक क्या था उसका? लाइक आई थिंक मैट्रिक्स मैनिपुलेशन था। बहुत सारे टेस्ट दिए थे तो याद नहीं। अच्छा ओके, बट वो तो बोल रहा है कि इजी था, तो दैट कैन बी डन अगर आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करी हो तो। मतलब इतना ज़्यादा डेटा स्ट्रक्चर में जाने की जरूरत नहीं थी, एरेज से ही हो रहा था। अच्छा, तो और तूने किस लैंग्वेज में तूने कोड किया था उस टाइम पे लिखने के लिए? मैंने C++ में किया था। C++ में किया था, ओके। तो अच्छा, और उन्होंने बिफोर हैंड ही ले लिया था प्रेफरेंस, तो जिन्होंने जो लिखा था उनको उसी में लिखना पड़ेगा। हाँ, मतलब ऐसा ही था एक्चुअली। इंटरनली मतलब सीसी के हाथ में था, बट बच्चों के लिए तो ऐसा ही था। अच्छा ओके, तो ये क्या एकदम मतलब मैंडेटरी था कि अगर आपने सी भरा है तो आपको आपके स्क्रीन पे सी ही दिखेगा सिर्फ, और ड्रॉप डाउन मेन्यू में? यूजुअली उन्होंने 1 या 2 घंटा पहले ही टेस्ट से प्रेफरेंस लिया था, तो इतना इशू नहीं आना चाहिए। आप 1 घंटा पहले तो डिसाइड कर ही सकते हो ना कि हाँ सी में कर रहे हो तो सी का ही भर दो। लेकिन वहाँ अगर आपने सी लिखा है तो सी में ही आपको देना पड़ेगा, वहाँ आप चेंज नहीं कर सकते एट दैट एग्जाम टाइम पे, चेंज नहीं कर सकते। आई थिंक रिटन क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं, बट वो नहीं कर सकते थे एमसीक्यू क्वेश्चंस। एमसीक्यू चेंज नहीं कर सकते थे, ओके। अच्छा हाँ, मैंने ट्राई नहीं किया, बट ऊपर ऑप्शन आ रहा था, थोड़ा थोड़ा याद है। ओके, ठीक है। तो हमने टेस्ट के पैटर्न की बात की, अब हम बात करते हैं तो सिलेबस भी आई थिंक हमने कवर कर ही लिया, राइट? सिलेबस भी हमने, लाइक तूने बोला कि ऊप्स था, प्रोग्रामिंग के आउटपुट क्वेश्चंस थे डिपेंडिंग अपॉन द लैंग्वेज जो आपने चूज किया है, और ओएस वाले क्वेश्चंस थे, ऐसा। कितने एमसीक्यू थे लगभग? एमसीक्यू कितने थे? अराउंड 20 थे। 20 एमसीक्यू थे, और एक हमारा प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन था, तो दोनों को आपको करना 45 मिनट्स। सफिशिएंट टाइम था। ओके। और ठीक है, अब हम बात कर, कोई सीपीआई कट ऑफ था क्या इस जैफ के लिए? सीपीआई कट ऑफ नहीं, कोई सीपीआई कट ऑफ नहीं था। ओपन फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स, ओपन फॉर ऑल प्रोग्राम्स एक्सेप्ट ह्यूमैनिटी, ऑब्वियसली ओपन फॉर ऑल। ओके, तो ऐसा कुछ था कि लाइक जब अगर एनालाइज किया गया या किसी ने एनालाइज किया कि लाइक एक सर्टेन रेंज से ऊपर वालों का ही हुआ सिलेक्शन, ऐसे बहुत सारी फॉर्म ने इस बार किया है कि जब जैसे ब्लैक एंड व्हिच ने किया, तो जब फर्स्ट लिस्ट आई उसमें सारे लोग 9 से ऊपर थे, तो ऐसा कुछ हुआ क्या इस सोनी के साथ कि सिर्फ? मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा एसओपी और ये रिज्यूमे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर थे रादर देन ऐसा कुछ। मेरा सीपीआई अच्छा था, 9 अबव था। हाँ, और बट मैंने ऐसा वो नहीं देखा, मतलब कि एक ट्रेंड क्या है। वैसे शॉर्टलिस्ट भी बहुत छोटी ही आई थी, बट बिलो 9 वाले भी थे। ओके, मतलब ओके ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि क्या रेंज था, मतलब बट तुम्हारे हिसाब से एसओपी रिज्यूमे अगर अच्छा है तो सीपीआई शुड नॉट प्ले अ बिग रोल, आपका एसओपी रिज्यूमे ज्यादा तो ये ठीक है। तो हमने लास्ट टाइम ये डिसाइड किया था कि हम एलिजिबल डिपार्टमेंट्स और कोर्सेज ऑल थे, सीपीआई कट ऑफ बाय डिफॉल्ट नहीं था, और हमें ट्रेंड के बारे में नहीं पता, बट स्टिल जो हमने ऑब्जर्व किया वो कि अगर एसओपी रिज्यूमे अच्छा है तो आपके चांस बनते हैं। करेक्ट। हाँ, और रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग तो ऑब्वियसली थी। एसओपी की, ठीक है, हम रिज्यूमे की बात करते हैं पहले, फिर हम एसओपी की बात करेंगे कि रेज्यूमे के लिए कैसा रेज्यूमे बनाया जाना चाहिए सोनी के लिए, क्योंकि जापानीज फर्म्स का इतना हम जानते हैं, दे रीड ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट वेरी केयरफुली, अनलाइक अदर फर्म्स वो लोग बहुत ध्यान से आपके हर डॉक्यूमेंट को पढ़ने की कोशिश करते हैं, वो पूरी कोशिश करते हैं समझने की। तो इसका रेज्यूमे कैसा होना चाहिए, और तुमने कौन सा रेज्यूमे अप्लाई किया था अक्रॉस आउट ऑफ ऑल द 5? तुमने किन से साइन किया था इसका जैफ? ठीक है, तो सबसे पहले एसओपी की बात करते हैं। तो व्हाट आई थिंक दैट तो एसओपी में रेलेवेंट प्रोजेक्ट, रेलेवेंट इंटर्नशिप और जो प्रॉपर कोर्स लिए हैं वो सब मेंशन करने चाहिए एसओपी में। तो what I did was I tried to map every other skill required mentioned in the JAF with my experience. Example, like if they require presentation skills, then I mentioned my RATA duty and articulation skills for setting exam questions. Yeah. So
kind of this way. If they are like looking for some computer vision, then I mentioned my computer vision project. If they have like asked about your FPGAs and GPUs, then I mentioned my few projects where I have done some sort of latency improvement by making the use of FPGAs or GPUs. तो वो सब मैंने वैसे SOP में लिखा था. One should make a proper flow and mention relevant results only in the SOP. I think SOP is very important as company shortlist really less number of candidates. However, it also depends on how many vacancies they have. For like mechanical, it seems that they have large number of vacancies and they have shortlisted relatively more number of people, but eventually they didn't select any, so we cannot comment directly on that. So what I would suggest is you dedicate good amount of time while writing SOP with multiple iterations to make the things that you have written more clear. Show them your motivation for a dedicated profile. You can apply for as many profiles as you want, but you will be asked to prioritize only 3 jobs. I applied for 2 jobs only. Yeah. And the rule of thumb is please write in very simple English. ज़्यादा हाई-फाई वर्ड्स जापानीज लोगों को बहुत पसंद नहीं आते. थरोर नहीं बनना हमें. हाँ, करेक्ट. रिज्यूमे भी इम्पोर्टेंट है. जैसे मैंने 5 रिज्यूमे बनाए थे. बात थोड़ी और करते हैं. SOP लाइक लेंथ कुछ था उनके साइड से या उन्होंने कुछ फॉर्मेट दिया था क्या उन्होंने? हाँ, एक प्रॉपर फॉर्मेट दिया था, उसी को फॉलो करना था. So there were certain questions, if I remember correctly, there were certain questions in that SOP कि ये ऐसा कुछ था ना, 3 या 4 क्वेश्चन शायद होते थे कि इसी प्रोफाइल के लिए क्यों ऐसा कुछ शायद होता था. तो बेटर बता सकते हो ऑब्वियसली. टोटल 2 क्वेश्चन थे. ओके. एक क्वेश्चन था जिसमें यू हैव टू एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट, एनी प्रोजेक्ट, एंड द सेकंड क्वेश्चन वाज कि व्हाई डू यू थिंक यू आर सूटेबल, व्हाट आर योर स्किल्स दैट यू पोजेस एंड व्हाई डू यू थिंक यू आर सूटेबल फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल. तो दोनों में वर्ड लिमिट सेट था. हर एक क्वेश्चन के बाद वर्ड लिमिट लिखा हुआ था कितना में लिखना है. ओके. कितने थे लगभग वर्ड्स? 500 थे. कितने वर्ड्स थे? ठीक है, वो दिख जाएगा, वो लोगों को ऐसे भी जात में दिख जाएगा. ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं. मैं मतलब SOP शेयर भी कर दूंगा, कोई इशू नहीं. चलेगा, वो कर सकते हो, वो हम पुट कर सकते हैं लिंक उसका. हाँ, तो ठीक है. तो क्वेश्चन से और यू हैव टू स्टेट योर आंसर इन दैट मींस बिलो दैट क्वेश्चन, राइट? या ठीक है, वो हो गया. तो SOP का फॉर्मेट हो गया. और SOP में वही उन दोनों क्वेश्चन की बट अगेन जैसा तूने मेंशन किया कि यू हैव टू सब्सटेंशिएट योर क्लेम कि ये वाला रिक्वायरमेंट है, ये वाला काम ऐसा मैंने किया है. तो सॉर्ट ऑफ आपको उन चीजों को रिलेट करना है आपस में कि कंप्यूटर विजन करा तो ये मैंने किया, ऐसा किया तो मैंने ऐसा किया. तो एवरी स्किल और एवरी एक्सपीरियंस के साथ मैप करो. बस इतना ही. ओके, ठीक है, ठीक है. और कोर्सेज वगैरह मेंशन करना चाहिए. लाइक अगर कोई कोर्स है जो कि रिलेवेंट है तो वो मेंशन करना चाहिए कि मैंने ये वाला कोर्स पढ़ के रखा हुआ है, ऐसा. हाँ, मैंने मेंशन किया था कि मतलब मैंने अपने ये वाला कोर्स, और इवन प्रोफेसर्स का नाम भी मेंशन कर सकते हो अगर यू थिंक कि वो इम्पैक्ट देगा. सही बात. ठीक है. तो हाँ, तुम रेज्यूमे की बात कर रहे थे कि रेज्यूमे का कितना इम्पोर्टेंस है, उस बारे में बात करते हैं. अब बताओ. हाँ, तो जैसे मैंने 2 डिफरेंट प्रोफाइल के लिए अप्लाई किया था. तो एक प्रोफाइल कंप्यूटर विजन वाली थी, एक प्रोफाइल थोड़ा डिजिटल हार्डवेयर की तरफ थी. तो मेरे पास 2 रिज्यूमे थे. एक रिज्यूमे में मैंने मतलब अपने डिजिटल के मेन प्रोजेक्ट्स उनको क्लब करके, टोटल 3-4 प्रोजेक्ट्स थे, उनको क्लब करके मैंने एक कॉमन हेडिंग में डाला था और ऊपर बड़ी हेडिंग दी थी डिजिटल प्रोजेक्ट्स. तो ये एक मुझे लगता है कि थोड़ा अच्छा लगता है इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर सर्टेन प्रोफाइल और तुम सब रेलेवेंट प्रोजेक्ट सबसे ऊपर लिख के डाल रहे हो तो एटलीस्ट अटेंशन मिलता है. फर्स्ट फ्यू सेकंड्स का अटेंशन मिलता है तुम्हें. देन मेरे दूसरी प्रोफाइल कंप्यूटर विजन थी, उसके लिए मैंने जेनरिक रिज्यूमे यूज़ किया था जिसके लिए मैं शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ था. तो रिज्यूमे भी थोड़ा स्पेसिफिक रखना चाहिए फॉर जापानीज प्रोफाइल्स. You should think कि अगर इफ़ यू आर टारगेटिंग फॉर जापान तो अपना एक रिज्यूमे बना के रखो जिसमें तुम जापानीज पीपल के लिए सम प्रोजेक्ट्स जो तुम्हें लगते हैं कि लास्ट ईयर थे और इस बार भी एंटिसिपेट कर रहे हो कि हो सकते हैं,
उनके लिए एक प्रॉपर रिज्यूमे बना के रखो और एक हेडिंग अच्छी से डाल के रखो उसकी। हेडिंग एज इन हेडिंग मतलब किधर की हेडिंग? मतलब जैसे रिज्यूमे स्टार्ट होता है तो सबसे पहले अपना नॉर्मल आता है एंड देन फिर यूजुअली पीपल स्टार्ट करते हैं अचीवमेंट से या फिर प्रोजेक्ट से या फिर एकेडमिक प्रोजेक्ट। जो ऊपर हेडिंग होती है, करेक्ट, तो जो ऊपर हेडिंग होती है उसमें ही मैंने ऐसे स्टार्ट किया था, डिजिटल प्रोजेक्ट्स, देन अपने 3 प्रोजेक्ट्स एंड देन आफ्टर दैट एकेडमिक प्रोजेक्ट्स, अपना 2 एकेडमिक प्रोजेक्ट मतलब एमटीपी प्लस सेमिनार एंड देन बीटीपी एंड देन फिर मैंने अपनी स्किल्स लिखी थी और फिर बाकी का फ्लो। तो वैसे एक प्रॉपर हेडिंग बना सकते हैं। अगर रहा तो हम तुम्हारे रिज्यूमे को बस ऐसे एक बार फ्लैश करके दिखा सकते हैं एक बार। नहीं तो मैं रिज्यूमे शेयर कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलेगा, आप बड़े अच्छे हैं, थैंक यू सो मच। और 2 पेज था कि 1 पेज था? रिज्यूमे 2 पेज, टेक्निकल प्रोफाइल ऑलवेज गो फॉर 2 पेज। या हाँ, नॉन कोर के लिए आप 1 पेज चाहिए, लाइक कंसल्ट्स या सॉर्ट ऑफ मैनेजमेंट जेरियल रोल्स के लिए। हाँ, ऐसे भी एमटेक वालों के पास आई थिंक जितना मैंने देखा है कि चूंकि उनके पास प्रोजेक्ट्स होते हैं कोर्सेज में और उनकी कभी कभी एक्सपीरियंस भी होते हैं, तो इन दैट केस 2 पेज में कंटेंट होता है यूजुअली पुट करने के लिए। ठीक है, हमने हाँ, तो एसओपी या रेज्यूमे इन दोनों चीजों में सोनी या इस तरह की कोर फॉर्म्स के लिए पीओआर का कितना इंपॉर्टेंस है? मतलब शुड वी मेंशन पीओआर एक्सप्लिसिटली इन एसओपी या मतलब we should devote that space in adding some technical skills या करना चाहिए POR ऐड? तो again like POR depend करता है तुम्हारा POR क्या था। resume में of course you will write the POR. SOP में for if I remember like most of these Japanese people they really want you to have certain presentation skills because they want you to present them while attending big seminars or something. तो even Hitachi के सारे JAFs में specifically mentioned था that you should be able to present what you are doing in front of like also in house and as well as बाहर जाके भी in house presentations भी तुम्हें करनी है और जो बड़ी presentations होती हैं let's say बड़े बड़े seminars होते हैं उनके in between the 2 countries or in between the 2 companies sorry, तो वो भी तुम्हें ही करने हैं because they really want some Asian people to have good articulation. Yeah, because they will be representing the firm, so you have to be flawless or you have to be effective while presenting. Technically sound and like be expressive. Yes. तो उसके लिए तुम अपने proper PORs mention कर सकते हो. Like as I said कि मैंने RATA duty में कुछ presentations दिए थे और मतलब बच्चों को क्वेश्चन समझ आए या फिर बच्चों को एक्सपेरिमेंट समझ आए तो उस फ्लो में एक्सपेरिमेंट लिखना कि बहुत कम डाउट्स मिले, प्रेजेंट करना वर्क को, एक्सपेरिमेंट्स को प्रेजेंट करना, तो ऐसा पीओआर यू कैन मेंशन। यस, हाँ, मींस एनीवे द आइडिया इज दैट एवरीथिंग इन योर एसओपी शुड बी रिलेटेड टू द जैफ in some way or the other. It should not be that there are 2 different things which do not have any coincidence. ये बात तो सही है। अब एसओपी के फॉर्मेट की हमने बात कर ली, रेज्यूमे की हमने बात कर ली, रेज्यूमे 2 पेज हमने लगाया, एसओपी की बात हमने कर ली। अब हम इंटरव्यू क्वेश्चंस पे आते, इससे बीच में कुछ छूट रहा है क्या जो कि इम्पोर्टेंट हो सकता है? इंटरव्यू क्वेश्चन आई थिंक सीधा इंटरव्यू पे आते हैं। ठीक है, इंटरव्यू में बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। हाँ, अभी नहीं छूटा तो नहीं कुछ। क्या बोल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ छूटा नहीं है। हाँ, तो हमने वैसे बच्चे ने जैफ साइन किया, सीपीआई फिल्टर था नहीं तो एनीवन कुड साइन द जैफ और कोई रिस्ट्रिक्शन था नहीं डिपार्टमेंट का, तो जैफ साइन करेगा। और सो आइडियली मींस गिवन द प्लेसमेंट प्रेशर और द सिनेरियो, द हेक्टिक शेड्यूल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, हाउ मच टाइम शुड वन डिवोट ऑन देयर एसओपी, प्रिपेयरिंग देयर एसओपी? ओके, तो लाइक once for SOP what I did was I spent like 2 days. So in one day I did not write anything. I just collected क्या question, क्या skills चाहिए और मेरे पास क्या क्या हो सकता है free mind से। I like spent 2-3 hours in a day and then फिर exams वगैरह थे तो उतना ज़्यादा नहीं time दे पाया। And then second day मैंने मतलब 1 or 2 hour में उसको 2-3 बार
रीइटरेट कर लिया था, फिर उसके बाद किसी को दिखाया था अपने फ्रेंड को कि एक बार वो रीड करे, उसने कुछ करेक्शंस बताए थे तो वो चेंजेस करके फिर अपलोड किया था। तो ऐसा है कि एटलीस्ट 6-7 आवर्स तो स्पेंड करो। ओके, हाँ उतना तो चाहिए, मिनिमम चाहिए उतना। हाँ, और इतने आवर्स स्पेंड करने का मतलब ये नहीं है कि मतलब बहुत ही स्लोली काम करो, एटलीस्ट 5-6 बार उसको रीड करो Yeah. और इटरेटिवली चेंज करते रहो चीज़ों को। Yeah, means once you are done with the first draft, then show it to your friends, your peers, and then get some feedback. Accordingly, incorporate those feedback to make it a better draft. And even when you are like reading it, try to read it in such a way that you don't know what was written on it. तो इससे तुम्हें समझ आएगा कि हाँ जो फ्लो आ रहा है वो कुछ क्लियर भी है या नहीं है। तुम ऊपर एक प्रोजेक्ट मेंशन कर रहे हो, नीचे उसी प्रोजेक्ट की दोबारा बात कर रहे हो, तो एक फ्लो बनना चाहिए बस। Yeah. Point. तो ठीक है, तो आई गेस हमने एसओपी, क्योंकि जो एसओपी के केस में जो मुझे समझ में आता है, हालांकि मैंने अप्लाई नहीं किया इस बार, बट जो मुझे समझ में आता है कि रेज्यूमे इज देयर इज सम डेडलाइन, तो उस टाइम तक हम बनाते हैं एंड देन इट इज फ्रीज्ड। बट इन केस में, इन एसओपी में क्या होता है कि कोई डेडलाइन तो होती नहीं, कंपनी आती है, उसने मांगा तो लगाओ, नहीं लगाओ तो मत लगाओ। तो पीपल समटाइम बिकम टेक इट फॉर ग्रांटेड कि ठीक है उस दिन कर लेंगे। या कुछ कंपनीज के लिए यू कैन टेक इट फॉर ग्रांटेड, बट कुछ जो जिस कंपनी को तुम एक्चुअली टारगेट कर रहे हो उसके लिए ग्रांटेड नहीं लेना। और एक बात भी है, हाँ, एक या दो एसओपी, मतलब जैसे लेट्स से किसी एक कंपनी का तुमने एसओपी बना लिया और अगर दूसरी कंपनी का क्लोजली रिलेटेड है टेक्निकल स्किल्स, तो तुम हाँ रिपीट कर सकते हो, बट हर एक कंपनी का एक बार अच्छे से पढ़ लेना चाहिए कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे मैं एनईसी का एग्जांपल दूंगा, तो एनईसी में मैंने 2 जॉब्स के लिए अप्लाई किया था, तो दोनों डिफरेंट थी। एक तो सोनी से मैच कर रही थी और एक वायरलेस नेटवर्किंग पे थी, तो उसके लिए बैठ के मेरे को फिर से दोबारा मेहनत करनी पड़ी थी। तो इट्स नॉट दैट कि इट्स वन टाइम जॉब। yeah. So you need to know how to mold the document depending on the JAF requirement। आपको मोल्ड करते आना चाहिए और वो करना भी चाहिए, अदरवाइज आप वहीं एक ही चीज को हर जगह चेप पड़े हैं, तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। इसलिए एसओपी को बेटर है कि एक ड्राफ्ट बहुत थोड़ा पहले बनाए, बहुत पहले मतलब थोड़ा बन जाए, ताकि उसको मोल्ड करने में आसानी हो जब एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। और वैसे रिज्यूमे भी बहुत हेल्प करता है, मतलब मैंने स्प्लिट करके स्क्रीन में एक साइड अपना रिज्यूमे रखा था, एक साइड पे जैफ खोल के रखा था, और फिर बस कॉपी पेन पे लिख रहा था कि हाँ आई विल मेंशन दिस प्रोजेक्ट, आई विल मेंशन दिस थिंग, आई विल मेंशन दिस थिंग। तो वो ऐसा मैप करना बहुत इजी हो गया था। Yeah, anyways, if you have spent substantial amount of time on drafting your resume or collecting all the points, then definitely that will come handy while writing any document out of it, because SOP is anyways a running document out of your resume, something minus or something addition sort of. Correct.